Hello and welcome everyone, my name is Shreya and in today's video we're gonna discuss the next questions of exercise 10.1 Heron's formula of your class 9th NCERT book. So before watching this video, I'm going to suggest you that please watch the videos I have made on this topic before, because these videos is basically a serial of the topic and you can have all the information you want to know and the concept clarity is there. So must watch those videos before watching this video, just to enhance your concept and the level of your knowledge regarding this topic. So let's begin. So before starting, I'll just give you a little revision of the formula. So Heron's formula is basically a formula used to calculate area of triangle. We all know. I've been discussing this in whole videos, and the formula is under root s minus a, s minus b and s minus c. So the s here is semi-perimeter. A, B and C are the sides of triangle, right? And the formula is used to calculate area. And we are not using the half into base into height formula, because not in every question we are having the altitude, height, because sometimes we are just given the sides and all the parameter things. So let's start. So for every question we just need to calculate the sides of triangle if it's not given. Most of the time these sides are given. Maybe there will be one side must be unknown and you're going to calculate it. Secondly, we need the semi-perimeter, and that's it. The whole formula is all about the two parameters, right? So let's get started with question number 4 of your NCERT exercise. So I'll read the question and solve this in front of you. So the question is, find the area of the triangle, two sides of which are 18 centimeter, 10 centimeter, and the parameter is 42 centimeter. So it's literally very easy deal for you to solve this sum, because it's very easy. Two sides are given, one is unknown, and you're having a parameter. So easy question. So now let's solve this question. It's about we are having two sides, so let's name the sides as A, B and C. Okay, so we are having A as 18 centimeter, B is 10 centimeter, C is unknown, but P is 42 centimeter. So first of all we need to calculate C. We don't have any C, right? So now let's solve it. We know the formula for semi-perimeter, that is A plus B plus C by 2. So semi-perimeter becomes 18 plus 10 plus C by 2. We have a perimeter that is 42 centimeter. And we also know semi-perimeter is half of perimeter. Semi-perimeter is half of perimeter. So uske liye we just need to put the values. Let's put the values. Perimeter is 42 by 2 and we're gonna have 21 centimeter as the semi-perimeter. So we have S. Now we can easily calculate this C, because semi-perimeter is this and semi-perimeter is also this. Now we're gonna simply equate these values. So 18 plus 10 plus C by 2 is 21. So 18 plus 10 plus C is 42, right? And talking about this, it will become 28 plus C is equals to 42, and C will become 42 minus 28. Answer will be 14 centimeter. So this is how we calculate the third side, that is 14 centimeter. अब हमारे पास third side भी है and parameter भी है और semi parameter भी है 21. तो अब क्या करना है, सब कुछ फॉर्मूला में पुट करना है. तो S is area is under root S minus A, right? यहाँ values put कर दे. What is S? 21. What is A? 18. So this is है ना. अब हम इसको
सॉल्व कर लेते हैं। सो अंडर रूट दैट इज 21 को 21 ही रहते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा, 11 एंड 7। अब ना इसको भी हम थोड़ा सा सोचेंगे तो प्राइम नंबर्स ही हैं, तो हम 21 को भी हम इसको ब्रेक कर देते हैं 7 into 3 में, ताकि हमारे पास पेयर बन जाए। 21 को हम ब्रेक कर देंगे, बाकी सारा एज इट इज लिख दूँ। तो ये 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो इट विल बिकम अंडर रूट 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, स्क्वायर स्क्वायर वाले बाहर कर दो, अंडर रूट 11, तो ये बन गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 21 अंडर रूट 11। पेयरिंग करना सीख लो, बस जो जो दो हैं उनको कॉमन लेकर बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको सी कैलकुलेट करने के लिए उसको सेमी पेरीमीटर के कर देना है इक्वल। यहाँ आप लिख देना, इसको आप इक्वेशन 1 दे देना, इसको इक्वेशन 2 दे देना, यहाँ लिख देना इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 because the statements are so we do need to write some statements, right? So चलिए start करते हैं next question. Okay, so next question is sides of a triangle are in the ratio 12, ratio 17, ratio 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. So now it's again a very simple question. The sides are being given into the ratio and we have already done this type of example in the previous video, right? So whenever the sides are given in ratio, we just place a parameter or a constant with them. For example, x or k or whatever you want. So just put the place the parameter with them and you can solve with the help of all the variables and you need to calculate the value of that variable also. नहीं समझ आया? Don't worry, अभी समझाऊंगी। किस तरह से करना है आपको, जो भी रेशियोज नहीं है मैं लिख लेती हूँ। ये मैं लिखती हूँ 12 रेशियो, ये साइड दी हुई है। अब देखो ये क्या साइड हुई, ABC में दो ना, बोलो 3 साइड्स हैं। अब ये कैसी साइड्स दे दी है रेशियो, मैं कैसे सॉल्व करूँगी? अब इनको सॉल्व करने का अलग से मेथड होता है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि हाँ A 12 हो गया, B 17 हो गया, C ना ना ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो का मतलब मे भी कुछ और टर्म थी, उसको कैंसिल आउट और लोएस्ट टर्म निकाल के ये निकाला हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे इनके साथ में कुछ एक ऐसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन हो, तभी वो कैंसिल आउट हुआ होगा। ठीक है, तो हम वो वेरिएबल एक्स ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो अब मेरी साइड आ गई 12x, 17x एंड 21x। अब इन तीनों को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर मेरे पास जो a और b c की वैल्यू आएगी उसकी हेल्प के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना है। तो चलिए, अच्छा और क्या गिवन है ये भी देख लेते हैं। और हमारे पास गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें दिया है 540, राइट? 540 है ना, तो पहले सेमी पेरीमीटर यहीं से निकाल लेते हैं, p/2 करके 270 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ यूनिट्स सेंटीमीटर में चल रहे हैं, ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 270 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम अपने फॉर्मूला वाला सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। यही किया ना, तो पुट करो प्लस 25x बाय 2। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके ऐड बाय 2 कर देना, तो दिस विल बिकम 54x बाय 2। ठीक, इस तरह से आपको बस याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो s की वैल्यू है ये आई है, यहाँ से s की वैल्यू ये आई है, इन दोनों को कर दो कंपेयरिंग, तो क्या आ जाएगा 54x बाय 2 इज इक्वल्स टू 270। यहाँ से 54x जो है वो बनेगा आपके पास 540 और x जो हो जाएगा वो बनेगा 540 बाय 54, कटिंग हो गया आ जाएगा 10। तो x मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी, तो a मेरे पास आएगा 120 सेंटीमीटर, b मेरे पास आएगा 170 सेंटीमीटर, c मेरे पास आएगा 250 सेंटीमीटर। तो ये a b c अब मेरे पास नए वाले आ गए हैं। अब यहाँ से एग्जैक्टली सारा सम फिर से शुरू होगा। जो आपने किया है ना अभी, वो सिर्फ x कैलकुलेट करने के लिए किया था।
अब जो करेंगे, अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए ABC नहीं आ गया, अब हम निकाल लेते हैं सेमी पैरामीटर सबसे पहले। या तो तीनों को प्लस करके बाय 2 कर दो, आंसर सेम है, या फिर यहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दो। 54 into 10 by 2 that is 540 by 2 that is 270 सेमी पैरामीटर। देखो यहाँ भी 270 आया था और यहाँ भी 270, इसका मतलब हमारा जो हमने जो वैल्यूज निकाली है वो सेम है। तुम चाहे इन सभी को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, 270 ही आने वाला है, राइट। तो एस भी आ गया और ये देखो ABC भी आ गए। तुम क्या करेंगे, सीधा वैल्यूज पुट करते हैं, किस चीज़ की वेट करनी है, और एरिया अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वैल्यूज पुट करो। S इज 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250, ठीक है। अब इसको ज़रा क्या, अब इसको माइनस करो 270 और ये आएगा आपके पास, माइनस कर दो 150, इसको माइनस करो दैट विल कम आउट टू बी 100, है ना, और इसको 20, ठीक है। इसको ना वैसे तो सीधा करो, सॉल्व भी कर सकते हो ना डायरेक्ट, कैसे करोगे, इसको लिख सकते हैं 50 into 2 या 20 into 5, पेयरिंग हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगे, इसकी भी पेयरिंग, या फिर एक और मेथड है ना, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो 81, हाँ 81, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गए, ये मैंने सबको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो 81 का रूट होता है 9 और ये जो 6 है इनके 3 बन जाएंगे ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9000 सेमी, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो मतलब कैलकुलेशन एक अलग से मेथड बता दिया कि अगर नहीं करनी है, मान लो नहीं खोलना है यार, वैसे तो हो जाएगा, 100 को लिखोगे 5 into 20 लिख दो, 20 की पेयरिंग हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगे, इधर से भी बना सकते हो, बाहर निकल जाएंगे। मैंने क्या क्या सभी को मल्टीप्लाई करा, 81 जो समथिंग बन रहा था, रूट निकाला, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी मेथड ईजी है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट मैथ्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज isosceles triangle has a parameter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. सिंपल क्वेश्चन है, isosceles triangle दिया है। isosceles triangle का मतलब क्या होता है, isosceles triangle का मतलब होता है कि इसकी जो 2 साइड्स है that's gonna be equal, तो इस ट्राइंगल की 2 साइड्स होंगी सेम, तो दोनों में से एक साइड तो हमें दी हुई है 12, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 ही होगी, 12 होगी, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपको बोला है पैरामीटर, पैरामीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, राइट, और आपको निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली थर्ड साइड, क्योंकि वहाँ पास है ही नहीं, तो हम A को 12 लिख लेते हैं, B को 12 लिख लेते हैं और C इज क्वेश्चन मार्क। तो पैरामीटर होता है 30 है पैरामीटर, तो सेमी पैरामीटर क्या होगा 30/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। हमें जो हमें फॉर्मूला है उसमें उसके अकॉर्डिंग सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, कितना आएगा 12 plus C/2 that becomes 24 plus C/2। तो ये वाले S की वैल्यू और ये वाले S की वैल्यू को हम करेंगे इक्वेट, इक्वेटिंग वैल्यूज ऑफ सम पैरामीटर, तो ये बनेगा 24 plus C/2 is equals to 15, 24 plus C क्या बन जाएगा 30, C हो जाएगा 30 minus 24, C आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, वेरी इजी। 30 को 30 minus 24 करेंगे तो C की वैल्यू होगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सिंपल जो 2 वैल्यूज दी थी वो पुट करी है और आखिरी में दोनों जो सेमी पैरामीटर है उनको मैंने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इक्वेट कर दिया, ये स्टेप होता है बस इम्पोर्टेंट, ये हो गया तो सब निकल जाएगा आराम से। तो अब बहुत ही ज़्यादा इजीली सब निकल सकता है, ठीक है। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल
का फॉर्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ से एस की वैल्यू पुट करो, व्हाट इज एस, 15 ब्रैकेट में 15 माइनस ए यानी 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ 15 का 15 माइनस 12 हो जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 9। तो देखो 3 तो पहले ही बाहर निकल जाएंगे बहुत आराम से, 3 into 3 है, स्क्वायर बन जाएगा, 9 अंदर ही रहने देते हैं, ये 3 आ गया बाहर। अब देखो 9 भी तो 3 into 3 होता है, 3 into 3 होता है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बच गया 15, एक और 3 बाहर। अब है 15, तो 15 को हम लिख सकते हैं, तो क्योंकि 15 तो देखो 15 बनेगा 3 into 5, तो कोई फायदा नहीं है करने का क्योंकि पेरेंट्स तो होने नहीं वाली, तो हम इसको अंडर रूट 15 ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 into 3 होता है 9 और अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यही निकालना था, वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पर ही आप छोड़ दो क्योंकि 15 को तो सॉल्व करने का कोई बनता नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर ही बनेंगे, 3 into 5 पेयरिंग होनी नहीं है, तो ये राइट। और आई होप इसी के साथ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हों, और पिछली वीडियोस भी ज़रूर देख लिए, उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे, कीप लर्निंग।